So you got your visa last year. तो वीजा मिलने का प्रोसेस क्या था एंड कितना डिफिकल्ट था टू गेट द यूएस वीजा? They applied on the 22nd of May. We got the date for 28th of May and I had the visa by the 1st or 2nd of June in my hand. देखो 10 दिन में यूएस का वीजा मिल गया. हाँ. So let's talk about your total cost of going to USA. So let's break it up into travel, then stay, then food, then shopping as you're a shopping freak I guess, and then miscellaneous. My first trip was 45 days long and I think I spent about 4-5 lakhs on that. I literally saw someone get shot in the leg in front of me and there was blood on the streets. तो हम डर गए थे उससे कि we were like कि ये क्या हो रहा है. एकदम से सारी पुलिस आ गई थी and they were catching the criminal and हमारा होटल लिटरली उसके सामने था and वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे. बोले थे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप अंदर जाके सो जाओ, ये तो होता रहता है नॉर्मली यहाँ पर. ये टिपिंग कल्चर जो है ये मैंडेटरी है, कैसे होता है यूएस में? आपका $50 का बिल है, सो 18% ऑफ दैट यू हैव टू टिप. मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट गया था एंड वहाँ पर शी डिड नॉट लेट मी लीव. शी वाज लाइक, डिड यू हैव अ बैड एक्सपीरियंस? आई सेड नो, आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. शी वाज लाइक, यू डिड नॉट टिप. आई सेड आई डोंट वांट टू. So she said, you have to do it. It's important. You must do it. जापान में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर आप टिप किसी को दोगे तो they will feel derogatory कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने मुझे टिप क्यों किया. Because जापान में amazing service is expected. India versus US जो clients है, how do you find difference in terms of mindset or even paying capacity? For example, if you are billing an Indian client, let's say 1 lakh rupees per month, यही same services के लिए US में कितना पे करने के लिए ready हो गया? 3 से 4 लाख पर महीने का. Okay, so 3x 4x. You come in and you say कि भाई you are spending like $15,000-20,000 and I can charge $5,000 a month and I can do it very well for you and it's a no-brainer for them. Did you find any girl in your entire trip? अरे I found so many girls. अगर आपको यूएसए जाना है तो दिस इज गोइंग टू बी द परफेक्ट एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू. आई इनवाइटेड माय वेरी डियर फ्रेंड ईशान शर्मा जो अभी यूएस जाके आया है 5 बार इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड हमने पूरी चीज़ें डिस्कस की है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है यूएस जाने की, यूएस वीज़ा मिलने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे 10 दिन में उसका पूरा यूएस वीज़ा मिल गया था, कौन से प्लेसेस विजिट करने चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस जा रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वहाँ पर लोगों से कैसे मिल सकते हो एंड कैसे बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो बाय रीचिंग आउट टू मोर पीपल इन यूएस. हमने उसकी वायरल ट्वीट की भी बात की जो उसने टिपिंग कल्चर पे की थी and what he had to go through after that tweet. That is also something which we have discussed. So if you are someone who is planning to go to USA in the near future, this is the perfect episode for all of you. Also, I was going through my YouTube analytics and I saw that 82.1% of my audience has not subscribed to the content that we are putting out. अगर आपको मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू दी होगी through the content, I sincerely request all of you to subscribe to this channel, click the like button so that YouTube algorithm promotes this and give the maximum value possible in the shortest amount of time. So please do me a favor by clicking on the subscribe button and make sure to share this video with someone who is planning to go to USA in the near future. Watch this entire episode of Conversation with Kushal. Hi Shan, welcome to Conversation with Kushal. कैसा है? Thank you for inviting me. I am good. आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. मैं तेरे यूएस के काफ़ी ट्वीट्स देखते रहता हूँ, काफ़ी स्टोरीज देखते रहता हूँ. तो आज ये पूरा पॉडकास्ट यूएस की तेरी जर्नी पे करते हैं एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे ट्वीट्स वायरल भी हुए, 90 मिलियन इंप्रेशंस, राइट? Yes, that was the viral tweet. यस तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द बिगनिंग इटसेल्फ. तो यूएस जाने का सबसे मेन रीज़न क्या था एंड डिसाइड कैसे किया कि मुझे यूएस जाना है? आई थिंक मेरे लिए यूएस जाना एक ड्रीम था लाइक फॉर 10-15 ईयर्स. मेरे बहुत सारे दोस्त थे बचपन में जो वर फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज एंड दे यूज टू गो फॉर वेकेशंस. जैसे आई थिंक वो नोबिता डोरेमोन वाले उसमें होता था ना, लाइक सुनियो जो जाता था हवाई घूमने के लिए. तो ऐसे दोस्त होते थे एंड आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनके भी उसमें होते होंगे. तो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग कि अच्छा मेरे को भी जाना है, देखना है क्या क्या है क्या. बट लास्ट ईयर जुलाई के टाइम पे इज़ व्हेन आई गॉट माई वीज़ा and that is when I planned कि चलो let's finally go to US and see what is the opportunity there. US is the biggest economy of the world. तो ऐसा क्यों है? What makes it different from India या फिर other countries and what can we learn from it? So it was just basically from a perspective of curiosity. लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कल्चर क्या है, why is it such the best place to start a business or a startup. So that was the curiosity that I went with. सो यू गॉट योर वीज़ा लास्ट ईयर यू सेड. तो वीज़ा मिलने का प्रोसेस क्या था एंड कितना डिफिकल्ट था टू गेट द यूएस वीज़ा? तो मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि आई हैड अ एलुमनाई फ्रॉम माई कॉलेज जो कि 10-15 साल से यूएस में रह रहे थे. उन्होंने वहाँ पे मास्टर्स किया, उन्होंने 7 साल एप्पल में काम किया, फिर उन्होंने 3-4 साल अभी मेटा में काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो ही इज़ लाइक अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो ही हैड द ग्रीन कार्ड एंड EB-1A उनका जो स्टेटस है उनका वीज़ा का. बेसिकली ही created like a letter on the letterhead of Meta saying that I want to do a meeting with Ishan and there's like an urgent meeting. So that is what I used.
अब नॉर्मल प्रोसेस जो होता है यूएस वीज़ा लेने का, उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल की वेटिंग होती है. अगर आप भी अप्लाई करोगे तो आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद का इंटरव्यू की डेट्स मिलेंगी. बट मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि आई हैड दिस एजेंट विच आई कनेक्टेड विद, एंड उसको आई हैड टू पे. एंड उन्होंने क्या किया, बेसिकली ही वुड रिफ्रेश द वेबसाइट, जो यूएस की वीज़ा वाली वेबसाइट होती है, एंड फाइंड आउट स्लॉट्स फॉर मी. तो क्या होता है, कई बार लोग विड्रॉ करते हैं स्लॉट्स, तो आप उन स्लॉट्स को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर सकते हो कि अच्छा आई वॉन्ट टू गो ऑन दिस डेट. एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट एजेंट सेइंग कि भाई कल तुम्हारा बायोमेट्रिक है और उसके बाद तुम्हारा अगले दिन इंटरव्यू है, एंड that will be happening in BKC in Mumbai. So I then packed up my bags and रात को मुंबई आ गया, and अगले दिन went for the biometric. That was I think 28th of May of last year, and उसके 4 दिन बाद I had the visa. So that was basically the process. Total So cost they applied on the 22nd of May. We got the date for 28th of May, and I had the visa by the 1st or 2nd of June in my hand. देखो 10 दिन में यूएस का वीजा मिल गया. हाँ, सो दैट वाज बेसिकली द Wow. प्रोसेस. इट्स वेरी लकी. ही डिड नॉट गारंटी कि ऐसा होगा कभी. इनफैक्ट ही वाज लाइक कि 1 महीने में या 2 महीने में डेट मिल सकती है, बट मैं कुछ गारंटी नहीं करूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली देन फिर आई विल से कि अच्छा आपने तो ऐसा बोला था. बट इट वाज वेरी लकी फॉर मी टू गेट द वीज़ा डेट्स सो क्विकली. लोगों को इतनी जल्दी नहीं मिलती है. मतलब मेरा को फाउंडर है, तो ही डिड नॉट गो विद द एजेंट वाला राउट, तो फिर उसकी जो डेट्स हैं दैट इज़ हियर इन मार्च अभी 2025, and he applied I think 5-6 महीने पहले. So that's how it is. But yes, I had to pay about 70,000 rupees to the agent for doing that work on my behalf. मैं भी कर सकता हूँ, वेबसाइट खोल करके वो रिफ्रेश करता रहूँ, चेक करता रहूँ, but I wanted to use that time better, in a better way. तो this 70,000 includes the US visa That fees includes also? the visa fees, and then on top of that their fees for finding out those slots for my interview. और US visa fees कितनी होती है? That's about 15,000 I think. Okay. Yeah. It's very expensive. मैं नहीं कह रहा कि ये सबको करना चाहिए, but I was so fed up from this whole system because what happened was 20 मई को I got a call from Apple saying that Ishan, we want to invite you for our WWDC event that happened. This is like a developer conference जो Apple हर साल जून के महीने में organize करता है. But मैं उसके लिए जाने के लिए I had to submit my visa. तो मैंने बोला कि आप मुझको इनविटेशन लेटर भेजो, मैं वीज़ा का जुगाड़ कुछ करे कर लूँगा, इज़ व्हाट आई सेड. 10 जून को इवेंट था और 20 मई को उन्होंने कॉल किया था, बट आई कुड नॉट गो फॉर दैट बिकॉज दे सेड कि वी नीड योर वीज़ा राइट नाउ, एंड शी वाज लाइक इट टेक्स एटलीस्ट 6 months फॉर यू टू गेट द वीज़ा, तो वी कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम. तो उस दिन मैं बहुत सैड हो गया था बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट. They were ready to fly me out to San Francisco, take me into the Apple campus, show me all the things that they do at Apple, but I was not having the visa, and just because of that छोटी सी चीज़ I was not able to get that opportunity. And उससे फिर I just asked a bunch of my friends जो कि US जा चुके हैं, and I was like कि मुझको आप कैसे भी करके वीज़ा दिलाओ जल्दी. तो उन्होंने किसी ने एजेंट का नंबर दिया, and that's how the whole thing happened. Got it. तो इसमें US वीज़ा का जो पूरा इंटरव्यू प्रोसेस रहता है उसमें क्या पूछा है एंड क्या जवाब दिया था तूने? जैसे मैंने बताया दो चीज़ें होती हैं. पहला होता है बायोमेट्रिक वाला जो टेस्ट होता है, तो उसमें जा करके यू हैव टू लाइक वो बायोमेट्रिक लेते हैं, आपका स्कैनिंग करते हैं, एंड दैट इज़ लाइक 5-10 मिनट का होता है. उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है विच इज़ द वीज़ा इंटरव्यू, एक्चुअल इंटरव्यू. उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे लुक एट सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे वर सोली अबाउट माई पास्ट ट्रैवल एंड अबाउट माई कंपनी and about why I switched from engineering degree to now doing marketing and being a content creator. So like the first question was why do you want to travel to US? So I said that I want to explore potential collaborations with clients over there. I want to do some meetings and I want to do some podcasts as well. So she said, oh, you're a creator. Why become a creator? So I said that because I want to spread awareness about opportunities in any career that one can get into in STEM. Then the next question was why did you switch from engineering degree to marketing? So I said that I did not like electrical engineering, but I found more interest in marketing and branding in general. So I've been doing that for the last 3 years. Then she was like, the person was like कि आपने पिछले 1-2 साल में जो सारी ट्रिप्स करे हैं, I did a trip to Japan, I went to Malaysia, Bali, Dubai, Singapore. तो ये सारे जो आपने ट्रिप्स करे हैं ये आपने खुद से करे हैं, वॉज दिस सेल्फ फंडेड? तो मैंने बोला दिस वॉज सेल्फ फंडेड, आई डिड इट ऑन माई ओन, आई ट्रैवल्ड ऑन माई ओन विद माई फ्रेंड्स इज वेल. सो दैट वॉज गुड. आखिरी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, लाइक मार्केट अप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड. मैंने बोला करीब 25 लोग काम करते हैं, एंड दैट वॉज इट. सो
she said ki good to go, you will get the visa in a few days delivered at your address. Now I was very anxious about this. तो basically मुझे किसी ने बताया था कि they want to know कि आप वापस इंडिया आओगे कि नहीं आओगे, वहाँ पे बस तो नहीं जाओगे, because of which they are asking all of these things. तो I had like मेरा जो घर का रेंट है तो उसका रेंट अग्रीमेंट, फिर जो गाड़ी है उसका वो ओनरशिप वाला डॉक्यूमेंट, कंपनी का डॉक्यूमेंट, पिछले 6 महीने के इनकम स्टेटमेंट्स, जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, तो आई हैड ऑल ऑफ दैट, वाज कैरिंग इट विद मी, बट वो सब उन्होंने पूछा नहीं. सो दैट्स हाउ इट वाज. आई डोंट नो इफ दिस इज द नॉर्म, यही क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझसे ये क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने. मेरा भी दिसंबर में अप्रूव हुआ यूएस वीज़ा, एंड मुझे भी ये क्वेश्चंस पूछे थे दैट व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब टू बिकम अ क्रिएटर, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएस, where are you going to stay in the US, and last question was basically कि educational qualifications में क्या क्या किया है, and they were trying to just gauge कि again like why is तो मैंने बताया था कि एक event है वहाँ पे, and then मुझे वहाँ से invite आया, I just want to go and attend that event. So they were just trying to figure out कि is he like really going for that event or he has some other reason. Exactly. So I think like you are right, they want to assess कि ये लोग वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. या एंड मैं वो बोल रहा था कि मेटा के जो मेरे एलुमनाई थे तो उन्होंने बेसिकली एक लेटर लिखा था, उसमें लिखा था कि आई वांट टू बेसिकली रेफर हिम एंड से दैट ही वुड बी स्टेइंग एट माय प्लेस एंड आई वांट टू मीटिंग विद हिम, ऐसा करके उन्होंने एक लिखा हुआ था, एक विच आई सबमिटेड. सो दैट आल्सो एडेड टू द एप्लीकेशन एंड दैट इज हाउ आई वाज एबल टू गेट इट एसएप. बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना फॉर पीपल हु डोंट हैव लाइक कनेक्ट्स जो मेटा में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं. सो डिड यू रीच आउट टू देम बाय लिंक्डइन या पहले से ही जानता था? तो उनका तो मैंने पॉडकास्ट किया था 2020 में, बट देयर वाज नो इंटेंशन कि अच्छा मैं 4 साल बाद उनसे वीज़ा के लिए लेटर मांगूंगा. इट वाज जस्ट बिकॉज ही वाज अ फ्रेंड एंड बिकॉज हमने हर साल कुछ ना कुछ वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो आई वाज लाइक आई वांट टू नो फाइनली मीट यू इन पर्सन एज वेल. One of the things that I will do when I go to San Francisco. So that was how it happened. But अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब you don't have to worry इतना ज़्यादा about that. You don't even need to have the urgency. मतलब I तो spent 70,000 and मुझे 10 साल का वीज़ा मिल गया, which makes it थोड़ा सा worth it for me I think. But you don't have to spend, like my co-founder did not spend much and 6 महीने में उसको मिल गई थी डेट. Got it. चलो लेट्स टॉक अबाउट योर टोटल कॉस्ट ऑफ गोइंग टू यूएसए. तो अभी इसको ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, वन बाय वन. सो लेट्स ब्रेक इट अप इनटू ट्रैवल, देन स्टे, देन फूड, then shopping, as you're a shopping freak I guess, and then miscellaneous. Why would you assume that? Because you wear Ray-Ban Meta glasses, you wear a very fancy shirt. नहीं ठीक है. So basically my first trip was 45 days long and I think I spent about 4-5 lakhs on that. तो इसका breakup बताना. Right. So the thing is that, as I said before, my flights were free. Yep. So I did not have to pay for that. Traveled in business class without paying. And I had to pay for my stay. And I had a friend of mine जो कि बेल्जियम से आ रहे थे. So he was like कि मैं बैंगलोर आता हूँ, मिलते हैं वहाँ पे. तो मैंने बोला मैं तो अगले महीने हुई नहीं यहाँ पे, I'm going to US, तो you also come with me. So he was like ठीक है, let's go to US. तो thankfully I found that friend and we both decided कि अच्छा let's spend 10 days, 12 days in San Francisco. तो we got a place साथ में, so that helped us save cost. तो वो split हो गया. उसके अलावा फिर we were like कि let's go to Los Angeles, वहाँ पे जाकर के let's meet Gary Vee. तो वहाँ पे 2 दिन का, तो उसकी flights वहाँ पे जाने की और फिर वहाँ का 2 दिन का stay, we stayed at a Hilton property. That was another, I think. तो इसका बताना, इसके कॉस्ट क्या क्या है वो भी तो बताओ. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए, वहाँ पर हम लोग एक होटल में रुके, उसका प्राइस था अबाउट 10-12,000 रुपीज़, स्प्लिट बिटवीन ईच था, तो 5-6 हज़ार पर नाइट हो गया, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल अगर आप इंडिया में भी रहते हो तो इन अ होटल. प्लस वी वर स्टेइंग इन सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन, सो राइट वेयर ऑल द ऑफिसेज आर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स. तो दैट वॉज बेस्ट फॉर मी बिकॉज मेरे बहुत सारे मीटिंग्स लाइंड अप थे. आई थिंक आई डिड 15-20 मीटिंग्स इन दैट 12-day time in San Francisco for my first trip ever. So that was the per day cost of hotel. Food is something which we were splurging on because we wanted to just experience ki how does Indian food taste like, how does Mexican food taste like, how does Japanese food, Chinese food taste like here. So that was expensive, right? So for example, there's a very famous Indian chaat shop in San Francisco called Chaat Corner, which you can go to, and every dish is about $20. Like you can order a samosa for $20, which is like 1,600-1,700 rupees, and then you can have that. But that would always be about $100 for 2-3 log mil karke. So that was probably like $30-40 per person. So that's the cost of food per meal. So if we are having, let's say, 2 meals and breakfast में included tha in the hotel, so we were spending at least per person about $70-80 per day.
दैट वॉज नॉट ऑलवेज द केस. कई बार वी वर गोइंग टू इवेंट्स तो वहाँ पर देयर वाज फ्री फूड. कहीं पे हम लोग किसी घर पे गए हुए थे फॉर डिनर, तो वी हैड डिनर ओवर देयर विद देम. बट इन जनरल दैट वाज द एक्सपेंस. द बिगेस्ट एक्सपेंस व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू यूएस इज गोइंग टू बी कैब्स, स्पेशली प्लेसेस जहाँ पर सबवे नहीं है. फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में सबवे है, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू ट्रैवल ऑन द न्यूयॉर्क सबवे. बट सैन फ्रांसिस्को में कैब्स ही लेनी होती हैं. मतलब बार्ट है जो उनका लोकल मेट्रो सिस्टम होता है, बट इट्स नॉट एज एफिशिएंट और एज वाइड स्प्रेड. सो आई वॉज टेकिंग ऊबर्स, एंड ऊबर जो होती है बहुत महंगी होती है. मतलब एवरी राइड वुड एटलीस्ट कॉस्ट यू $15 से $20. कहीं भी जा रहे हो आप, लेट्स से 5-10 मिनट आपको कैब से जाना है, तो दैट विल कॉस्ट यू दैट मच. और यू कैन वॉक. मतलब इट्स अ वेरी वॉकेबल सिटी. सैन फ्रांसिस्को में जब गया था पहली बार, तो आई रियलाइज दैट. तो आई कुड ईदर टेक अ 5-10 मिनट ऊबर, और आई कुड वॉक फॉर 25-30 मिनट्स एंड रीच दैट प्लेस. I chose to sometimes walk as well. तो say I would have food and just walk, and every day मेरे steps were like 15,000-20,000 per day. So that basically was the cost of going to San Francisco. 12 दिन की trip. फिर we spent about 2 days in LA. उसकी flights were like 7,000-10,000 के आसपास one way. And then 10,000 rupees. हाँ, 7,000 रुपीज़. वहाँ पे फिर वी स्टेड एट अ हिल्टन प्रॉपर्टी. दैट वाज 10,000 फॉर टोटल, तो 5,000 पर पर्सन. नॉट वेरी एक्सपेंसिव अगेन, बिकॉज वी स्टेड इन डाउनटाउन, विच इज़ अ मिस्टेक. डाउनटाउन लॉस एंजलिस का बहुत ख़राब है. वहाँ पे बहुत सारे होमलेस क्राउड रहता है, एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस, स्पेशली अगर आप पहली बार आ रहे हो एंड यू हैव नॉट बीन टू द US, तो आप डर जाओगे वहाँ पे. एक तो पूरा खाली खाली सा रहता है, डेजर्टेड रहता है वो. तो वी डिड नॉट नो, वी थॉट कि डाउनटाउन में रहना चाहिए और कहाँ रहेंगे, राइट. सो वी टुक दैट प्लेस, बट दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन. सो नेक्स्ट टाइम आई विल स्टे समवेयर अराउंड वेस्ट हॉलीवुड और सम प्लेस बेटर देन दैट. बट दैट वाज द LA वाला ट्रिप. देन वी टुक अ फ्लाइट टू लास वेगस. So Las Vegas में there was a AI conference happening, so we went for that, and obviously we've heard so much about Las Vegas. So we spent about 3-4 days there. We stayed at Caesars Palace, which is a hotel जो मैं I think Tom and Jerry के टाइम से देख रहा हूँ TV पर, and I was finally going to stay at that place. It was not very expensive. It was like 15,000 for a night. Again split करेंगे तो 7,000-8,000 per person आ जाएगा. For 3 days we stayed, so 45,000-50,000 rupees for that total. Then उसकी flights were again very cheap, because like LA and Las Vegas is very nearby, so that was like 5,000-6,000 rupees again. हाँ, जो US की फ़्लाइट्स होती है उनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसमें आपको लगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है. एंड क्योंकि मैं 45 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहा था, आई हैड 2 बैग्स विद मी. एक बैग जिसके अंदर मेरे सारे कपड़े रखे हैं, और दूसरा बैग क्योंकि मैं पॉडकास्ट करना चाह रहा था, तो उसमें इट हैड 2 mics, इट हैड 2 cameras, इट हैड मोर शूटिंग इक्विपमेंट, tripod stand and stuff like that, and I wanted to carry it with me because I did not know कि US में मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा. So I had that stuff with me from India. So I had to pay on every flight about $80 extra for both of my luggage on top of the flight. Then I got to know about this amazing flight in US which is called Southwest Airlines. Southwest Airlines क्या करती है? It's basically like a short distance वाला flight है. मतलब it won't take you from San Francisco to New York in one go. But the best thing about Southwest Airlines is that they allow 2 bags free. So you can check in 2 bags and you can directly, without having to pay for that separately. बाकी हर airline में they were asking you to pay $80 to $90 extra. So about 7,000 rupees you were paying if you were going from another flight. Southwest was थोड़ा सा expensive, but it was still fine. So for example, let's say the normal flight is 10,000 rupees plus the 7,000 which you are paying extra on the luggage. So Southwest would be probably like 14,000 rupees, with which I'm still saving some 4,000-5,000 rupees. So that was the math for the flights. फिर लास वेगस में आकर के अगेन वहाँ पे इतनी गर्मी है, you cannot walk. तो the best thing about Las Vegas is जो सारे hotels हैं नीचे अंदर से connected हैं. तो आप नीचे जाएंगे, आप नीचे अंडरग्राउंड वॉक कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू द इंटायर लास वेगस का स्ट्रिप. एंड इट वॉज अ वेरी मैजिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ के होटल्स इतने बड़े बड़े होते हैं. आई डिडंट इवन इमेजिन कि इतने बड़े होटल हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल सीजर्स पैलेस में व्हेन आई वेंट टू गो फ्रॉम माई रूम टू द जिम, इट टुक मी अबाउट 30 minutes. वॉक कर रहा हूँ मतलब 30 minutes तक, एंड मैं खो गया फिर. एंड बीच में स्लॉट मशीन्स वो आ गई, उनकी बेटिंग वाली जो भी मशीन्स होती हैं लॉट. सो दैट्स बेसिकली लास वेगस. उसके बाद फिर भी आई वेंट टू डैलस में एक पॉडकास्ट शूट करना था मुझे, तो आई जस्ट वेंट देयर फॉर 1 day.
दैट अगेन वॉज लाइक 10,000 रुपीज़ की फ़्लाइट थी जाने की. उसके बाद फिर आई स्टेड in a Hilton property for a day to shoot a podcast. That was like 10,000 again. And then I took one flight to New York. That was my first time going to New York, another 10,000 rupees. And वहाँ पर I was staying at a friend's place. So thankfully I had friends who were staying in New York. वरना New York का hotel is very expensive. Everything about New York is very expensive. San Francisco is very cheap compared to New York. वहाँ के जो कैब्स होते हैं, जैसे मैंने बताया $15 से $20 इफ़ यू आर इन सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे विल बी एटलीस्ट $30-40 पर कहीं भी जाना हो. एंड इट विल टेक यू ट्वाइस एज लॉन्ग, क्योंकि न्यूयॉर्क की जो सड़कें हैं दे आर वेरी कंजेस्टेड समटाइम्स, स्पेशली इन पीक आवर्स. सो इट्स रिकमेंडेड दैट यू गो ऑन द सबवे. बट आई केम टू न्यूयॉर्क, स्टेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस, सो द कॉस्ट ऑफ होटल वॉज सेव्ड. बट अगेन वी वर ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना खा रहे थे, एंड वी वर splurging on that. So that was, again, as I said, $30-40 per person per meal. So about $80 per day. And then उसके बाद the best thing about New York is the subway. Now subway का ऐसा है कि every time you can just use your credit card and tap it and enter in the subway. And it will just deduct $3. So subway क्या होता है exactly? Subway is basically like the metro, right? So you tap your card, जो भी card है आपका, deducts $3, and with that $3 you can travel wherever you want in New York without having to tap again. Like आप literally मैनहट्टन के एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हो with just tapping once, उस लाइन में अगर वो है जहाँ भी आप जाना चाह रहे हो. So that is the best part about it, and I think it caps at, अगर आप 10 बार ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, तो फिर बाकी की सारी राइड्स अनलिमिटेड हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी. सो यू स्पेंड लाइक $30 और सो पर वीक, एंड उसके बाद अगर आप और ट्रैवल कर रहे हो तो इट विल जस्ट बी फ्री फॉर यू. सो फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल, एंड पूरे आई स्टेड फॉर लाइक 12-13 days. आई बेयरली स्पेंड मोर देन $30-40 इन अ सबवे, एंड इट्स वेरी क्विक. अगर आप फास्ट पे सबवे ले रहे हो तो यू कैन रीच एनी वेयर इन लाइक 10-15-20 minutes. So that's the best part about New York subway. But फिर शॉपिंग की बात आती है तो so basically there are outlet factories, basically malls होते हैं which are located on the outskirts of the cities, जहाँ पे आप जा सकते हो, and you can shop over there, and they generally have a 40-50% sale over there. So सारी brands जो आपने देखी होंगी, कोच हो गया या फिर जो भी फेमस ब्रांड्स हैं, वहाँ पर बहुत बड़े डिस्काउंट पे रहते हैं. So you can go there and you can shop. The only problem is कि वहाँ तक पहुँचने का डिस्टेंस का खर्चा जो है, तो that will be there. तो it's only worth it if you want to buy a lot of things. ऐसा नहीं कि आप एक बार जाके एक शर्ट लेकर आ गए. That will just be waste of your time and your energy, and won't be worth it. So basically you can take one day aside in which you're like कि मुझे पूरे दिन शॉपिंग ही करनी है. Go to a factory outlet and just spend the whole day there. वहाँ पे खाने की भी जगह है, वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स हैं, लाइक वट एवर ब्रांड यू कैन थिंक ऑफ, दे माइट हैव अ फैक्ट्री आउटलेट ओवर देयर, एंड यू कैन गो एंड शॉप फ्रॉम देम, एंड दैट विल बी मच चीपर फॉर यू वर्सेस बाइंग फ्रॉम द एक्चुअल जो हाई फैशन स्ट्रीट जो होती है, वहाँ से खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको. कितना कॉस्ट होगा इफ़ यू बाय इट फ्रॉम अ हाई फैशन स्ट्रीट वर्सेस अ फैक्ट्री आउटलेट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, राइट, सो दिस शर्ट इज़ नॉर्मली in India, this shirt is about 16,000-17,000 rupees. So Which brand is this? This is Ralph Lauren. So the shirt in India is very expensive, even though this might be made in India. Made in India लिखा होगा, but it is 17,000 के around in India. Now, if you go to the US, this will be about $125, which is about like 10,000-11,000 rupees. Now, I bought it from a factory outlet, which got me a 40% discount. So when you do that math, it comes out to about $70-80, which is about like 6,000-7,000 rupees. And it's like a staple piece. मैं इसे बहुत बार पहनता हूँ, तो I thought कि it's worthwhile to invest in a cloth like that. So I just bought this shirt. So इस तरह से there are many brands. तो ये तो थोड़ी महंगी brand है, मतलब there are lots of other brands as well that you can shop for, and वो और भी सस्ता होता जाएगा. वहाँ पे यूनिक्लो की स्टोर है, वहाँ पर H&M की स्टोर है, वहाँ पे इन जनरल जो भी आप ब्रांड्स देखते हो उन सब के स्टोर वहाँ पे होंगे. So you can get great discounts over there. But पूरा दिन जाएगा, तो be prepared for that. New Jersey में है, there is a outlet mall. There is a outlet mall in San Francisco में, Bay Area में है एक. तो you have to go and spend the whole day. Got it.
एंड न्यूयॉर्क में स्टे में कितना फर्क होगा? लाइक यू सेड इट इज वेरी एक्सपेंसिव, सो हाँ। व्हाट इज द टैरिफ यूजुअली इफ समवन वांट्स टू स्टे? कम से कम 15 से 20 हज़ार तो पर डे जाएगा ही. मतलब इफ़ योर द थिंग इज़ कि या तो आप एकदम कहीं बाहर रहो, दूर एकदम सिटी से, तो वहाँ यू डोंट हैव टू पे एज मच. एंड द स्पेशल पार्ट अबाउट न्यूयॉर्क इज़ दैट वहाँ पर एयरबीएनबी नहीं चलता. Like in Manhattan, Airbnb is banned. So you can't even stay at a Airbnb property and save some money. Normally हमने वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में we stayed at an Airbnb for 2 days because of something which happened. Shooting happened in front of our hotel. Shooting, as in like gun shooting? Gun shooting. So like when I literally saw someone get shot in the leg in front of me and there was blood on the streets. तो हम डर गए थे उससे कि वी वर लाइक कि ये क्या हो रहा है. मतलब एकदम से सारी पुलिस आ गई थी. लाइक द होल चौराहा जो होता है उसको उन्होंने जाम कर दिया था. एंड दे वर कैचिंग द क्रिमिनल एंड सब लोग भाग रहे थे. एंड हमारा होटल लिटरली उसके सामने था. एंड वहाँ पे एक पाजी थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप अंदर जाके सो जाओ, ये तो होता रहता है नॉर्मली यहाँ पर. तो हम लोग डर गए थे. तो वी वर लाइक कि हम यहाँ पे कल नहीं रह सकते. लाइक दिस इज़ वेरी रिस्की. So the next day we stayed at a Airbnb property in San Francisco that was much safer in a suburban area. मतलब ये तो was like in like the market street which is like the main area. So that's basically how it is. New York में again Airbnb नहीं है, तो you would either stay at your friend's place or you would stay in Manhattan in some hotel. And वो सारे hotels महंगे होते हैं in general. तो 15,000 से 20,000 per night is basically what you can expect. There's also a concept of pod hotels, which I saw on the 42nd Street in Manhattan, जिसमें basically आप एक pod में रह सकते हो. It's like a छोटा सा capsule type का thing. So you go around in the city the whole day. You can work out of co-working spaces, in gardens, in wherever you're going. And then रात में आके you can just sleep there. And that is relatively cheaper. I think it's like 10,000 rupees a night, which is still a lot of money. Like in India, for 10,000 you can get like a proper 5-star property. But that's how it is in New York. So best to have a friend. और आप कहीं दूर रहो but फिर वो commute में बहुत सारा time चला जाएगा. And it's just not worth it. The moral of the story is that make friends who are going to go to New York in the future. But ठीक है, tell me one thing. इसमें like was there any cost which you did not expect and ऐसे हो गया कि अरे यार shit, ये तो additional cost आ गया, इसका तो मैंने budgeting ही नहीं किया था? आई थिंक मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खाने पे इतना खर्चा हो जाएगा. और मुझे लगता है कि यूएस इन जनरल कंज्यूमरिज्म में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है. मतलब इट मेक्स यू बिलीव कि आपको ये चाहिए ही चाहिए अभी. तो मुझे लगता है कि मैंने जब वापस जा रहा था फ्लाइट में मैं, तो आई मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आई स्पेंट मनी ऑन एंड आई रियलाइज दैट अनएक्सपेक्टेड बिग चंक वॉज क्लोथ्स विच आई डिड नॉट नो कि मैं इतना खर्चा करूँगा. 45 days था मैं, तो आई स्पेंट लाइक अबाउट $1,000, $1,200 or so on clothes, which is a lot of money if you think about it. I bought like a Coach ka leather bag and stuff like that. Now when I look back, when I reached India, I was like, yeah, I didn't really need all of that. इतना नहीं चाहिए था. मतलब वो Coach का बैग अभी भी रखा हुआ है बस. वो इंडिया में ले जाने के लिए ऐसे रफ यूज़ के लिए नहीं है, वो बना नहीं है. तो हम लाइक मैं क्या करूँगा इसका, तो इट्स जस्ट केप्ट देयर. तो वन एडवाइस वुड बी टू नॉट गेट स्वेड अवे बाय द क्लेवर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ यूएस. क्योंकि इफ देयर इज वन थिंग अमेरिका डज वेल, इट इज़ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, मेकिंग यू बिलीव कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और आपने नहीं ली तो आप मिस आउट कर रहे हो बहुत ज़्यादा. एंड ये मुझे 5 बार जा चुका हूँ मैं यूएस, एंड हर बार मुझे यही लगता है. You've been to US 5 times हाँ. in the last 6 months. In the last 6 months. My God, क्यों ऐसे 5 बार क्यों? क्या वो बार बार इवेंट्स आ रहे थे या कुछ चीज़ें हो रही थी. मतलब 1-2 बार तो वॉज फॉर माई ओन मार्केटिंग कंपनी, तो उसके लिए गया था. बाकी टाइम एप्पल वॉज इन्वाइटिंग, सो दैट्स बेसिकली हाउ इट हैपेंड. And when Apple invites you, so everything is sponsored. हाँ, so they take care of everything, which is the best part about Apple. Wow, lovely man. So tell me, what was your most expensive food bill in US for one meal? तो द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड बिल जिसके लिए मैंने पे नहीं किया था, मेरे दोस्त ने पे किया था. इट वॉज $800. हम लोग 6 लोग थे. $800? हाँ, जिसमें से $200 की तो टिप थी आई थिंक, जो उसने दे दी वेटर को. एंड वो एक घंटे में वेटर ने $200 कमा लिए. मतलब $200 पर घंटा तो एक प्रॉपर डेवलपर का पेमेंट होता है इफ़ यू थिंक अबाउट इन यूएस. And that is crazy to imagine. We went to this restaurant called Bungalow in New York, and basically हम बहुत भूखे थे, right? मेरे दोस्त ने बोला था कि
खाना मत, लंच करना ही मत, ऐसे ही आ जाओ डिनर पे. सो वी वेंट देयर एंड बहुत भूखे थे. उन्होंने हमको मेन्यू दिया. हमने बोला कि देखो हम वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन जो भी है सब ले आओ, पूरा मेन्यू ले आओ. सो वी हैड आई थिंक अबाउट 7 स्टार्टर्स. वी हैड अबाउट 6 मेन कोर्स की, जो दाल, वो भरमा बैगन और भिंडी और पनीर और छोले और सब कुछ. देन वी हैड लाइक 4 डेजर्ट्स. एंड फिर उन्होंने बोला कि आपने इतना सारा ऑर्डर किया, हम आपको एक नया डेजर्ट ला के देंगे जो मेन्यू में है ही नहीं. सो देन वी हैड दैट. बहुत खा लिया था. देन फिर फूड का बिल आया जो $600, उसके ऊपर $200 की टिप दैट माई फ्रेंड गेव बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. So that was the thing. Now Bungalow is like the best restaurant to have food at in New York. It's the hardest to get into as well, and everyone is talking about it in New York. So we had to go there. Again, ये सब फिजूल खर्ची है, आपको नहीं स्पेंड करना चाहिए इतना, मुझे भी नहीं करना चाहिए. मैं जब वापस चेक कर रहा था फ्लाइट में बैठ करके सारे खर्चे, तो आई रियलाइज कि दिस वॉज टू मच मनी दैट आई स्पेंड. So but ये तो yeah. तूने नहीं खर्च किया. ये मैंने खर्च नहीं किया, but like it still is there, right? मतलब last then I again took my friends to Bungalow. And then we ordered food and uska bill was $300 for 4-5 people. So that was the thing. Why is it so expensive? मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंसिव. ऐसा मैंने बताया, चाट कॉर्नर में $20 का मिलता है आपको एक डिश. सो समोसा चाट या फिर आपने डोसा ऑर्डर किया तो $20 का सब कुछ रहता है. यहाँ पे $25-26 का था. बट क्योंकि इतने सारे डिशेस थे ना, मतलब स्टार्टर आप 6 स्टार्टर ऑर्डर कर रहे हो, $25 का हर एक स्टार्टर है, तो फिर कितना होगा, फिर आप कैलकुलेट करिए. फिर साथ में लच्छा पराठा आ रहा है, उसमें फिर चीज़ नान आ रही है, राइट? तो एंड वो भी $10 की है. सो इट एड्स अप दैट वे. And you said that the tip was of $200. $200. So एक बार अभी मेरे को क्लैरिटी देना कि ये टिपिंग कल्चर जो है ये मैंडेटरी है $200 देना, या कैसे होता है यूएस में? बहुत ही अजीब सा कल्चर है. मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट कई तरीके से है भी. मतलब वो आपको जाने नहीं देंगे अगर आप उनको टिप नहीं करोगे, जो वेटर्स होते हैं. एंड ये बहुत ही अजीब सा कल्चर है जो मुझे पहली बार देखने को मिला, जिसके बाद मैंने ट्वीट किया था एंड इट वेंट वायरल ऑन ट्विटर एंड ऑल द न्यूज़ आउटलेट्स ऑफ इंडिया. द बेसिक आइडिया वॉज दैट बेसिकली अगर आपका $50 का बिल है तो आपको कम से कम 18% का आपको टिप करना होगा. सो 18% ऑफ दैट यू हैव टू टिप. सो इट्स लाइक लगभग $60 यू हैव टू नॉर्मली पे. नाउ मेरे दोस्त के पास सिर्फ $50 का ही नोट था, तो ही वॉज आस्किंग मी कि डू यू हैव सम चेंज. मैंने बोला नहीं है, मतलब हमारा बिल ही वॉज लाइक $48 something. सो आई थॉट विल बी फाइन. तो बोला कि नहीं वी हैव टू पे सम टिप. तो क्या करें. देन ही फाउंड सम डॉलर वो रखे हुए थे, $1-2 रखे थे, तो उसने वो दे दिया. एंड इट वॉज लाइक $5 एक्स्ट्रा जो उसने पे करे थे. सो आई टोल्ड द वेटर दैट आई नीड माई चेंज. तो वो बोली कि ओ नो दैट इज जस्ट टिप. मैंने बोला आई डोंट वॉन्ट टू पे द टिप, आई वॉन्ट द चेंज. तो बोली ओ दैट यू हैव टू पे. ऐसा बोल के वो चली गई. पैसे लेके चली गई वो. एंड दैट वॉज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड. बट इन जनरल द आइडिया ओवर देयर, द वे दे रैशनलाइज इट इज बिकॉज यू आर हैविंग द एक्सपीरियंस एंड बिकॉज समवन इज सर्विंग यू, so you have to pay for that experience to the waiter. Like the food that you're ordering is, you're paying for the food and the restaurant, but you have to pay separately for the person who's serving you the meal. Which is again a very weird concept. जापान में आप अगर जाओगे तो वहाँ पर आप टिप किसी को दोगे तो दे विल फील डेरोगेटरी कि आपने ऐसा कैसे किया, आपने मुझे टिप क्यों किया. बिकॉज वहाँ पे जापान में अमेजिंग सर्विस इज एक्सपेक्टेड कि अगर मैं वहाँ पर आया हूँ रेस्टोरेंट में तो मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. वो सब जो कॉस्ट है उसमें, जो फूड का प्राइस है उसमें इंक्लूडेड है. बट इट्स जस्ट डिफरेंट कल्चर्स. आप किसी कल्चर पे हाथ उंगली उठाओगे तो फिर यू विल ऑब्वियसली गेट अ लॉट ऑफ हेट. बट आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि ऐसा क्यों होता है. देन आई रियलाइज कि रेस्टोरेंट के जो ओनर्स होते हैं वो सर्वेंट्स को पे नहीं करते मिनिमम आर्ली वेजेस जो होते हैं. दे पे देम लाइक $2-3 an hour, विच इज़ वेरी लो. Especially if you are like a struggling 20-something year old in New York, right? तो वहाँ के minimum wage is like $15-16 per hour, but they pay $3 and they expect कि बाकी का जो difference है वो tips में cover हो जाएगा, जो बाकी customers pay करेंगे ऊपर से, which is not fair. But that's just the system and उसको आप change नहीं कर सकते. So that was the tipping experience. But this is more prevalent in New York than it is in SF. वहाँ पे it's not very hard and fast कि देना ही होगा आपको, but New York में तो it's like a thing. मैं एक American restaurant गया था and वहाँ पर उसने मुझको जाने नहीं दिया था. She did not let me leave. She was like, did you have a bad experience? I said, no, I had a great experience. She was like, you did not tip. I said, I don't want to. So she said, you have to do it. It's important. You must do it.
and I said I don't want to, and she kept insisting on it कि नहीं आप पे करो. Then I had to pay. मैं क्या करूँ और. And this is not just in food. For example, जो मेरे दोस्त जिनके घर में मैं रुका हुआ था न्यूयॉर्क में, तो वो गए बार्बर के पास टू गेट अ हेयर कट. अब हेयर कट करता है बार्बर, तो दैट इन इट सेल्फ इज अ सर्विस, राइट, फॉर विच इज चार्जिंग लेट्स से $50, $50 उसने चार्ज किए आपसे, आपने वो पे कर दिए. नाउ माई फ्रेंड वॉकड आउट ऑफ द प्लेस, द सैलून, एंड वो पीछे से भागते भागते आ रहा है बार्बर. ही इज लाइक, ए ब्रो यू डिड नॉट टिप मी. and he said कि भाई I just paid you for the service of cutting my hair. तो बोला no you have to tip me, so then you have to tip again. वहाँ पे there is a culture to maintain a relationship with your barber. आप सेम जगह रहते हो, आप अपने बार्बर से ही बाल कटाते हो, उसको पता है कैसे बाल काटने हैं, 5-10 साल से वही काट रहा है आपके बाल, है ना. तो ऐसा it's like a relationship that you maintain, so that's how it is. So what happened with your tweet? Like how many impressions it had, and then did you receive any threats from anyone from the US कि ये क्या लिख दिया? Yeah, it got about I think 65 million impressions, 73,000 likes ऐसे कुछ आए थे उस tweet पे. and वहाँ पर it was a very interesting experience for me because I was getting hate from everyone possible. Indians living in India were hating, saying कि तूने $5 के लिए नाक कटवा दी हमारी अमेरिका में. Indians in America were hating because they were like कि अब हम अगली बार जब जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में तो हमको ख़राब एक्सपीरियंस मिलेगा because of you, because you did this blunder. Americans living in America were like, you know, you cannot, like they are like, when in Rome, do as Romans. So you have to follow the culture, the tradition over there. Then there were Europeans who were commenting saying that, you know, this should be something which is मतलब customary. If I want to tip, then I should tip. If I don't want to, it's completely my choice. I should not be asked and forced about it all the time. Then there were other people around the world who were adding their 2 cents. But it was a very weird comment section. There were people from around the world who gathered together and just sharing their 2 cents on it. Some people thought that what I'm saying makes sense. Some people thought that it does not make sense. But it made for an interesting experience. The worst thing was the messages I was getting in my DMs. इतने खराब, इतने वाहियात messages जो आप किसी को कभी बोलोगे भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे किसी को बोल सकते हो. एंड इट वॉज लाइक कि मैं जितनी बार रिफ्रेश करूँ उतनी बार नया मैसेज आ जाता है एक. देयर वॉज अ डे मैं पूरा सो नहीं पाया. मैं देख रहा था कि भाई किसी के दिल में इतना जहर कैसे हो सकता है कि वो आपको ऐसी बातें लिख रहा है. और एक नहीं है, ये 100 मैसेजेस आ गए मेरे को ऐसे. एंड हर तरह के लोग, मतलब इंडियंस भी, इंडियन अमेरिकन्स भी, सब लोग ऐसे मैसेजेस लिख रहे थे मेरे को DMs में. सो दैट वाज अ वेरी टेस्टिंग टाइम. मतलब आई डिड नॉट फील मच क्योंकि I've been through this multiple times before in my journey as a creator, but I'm sure कि अगर कोई बंदा जिसने सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, it would impact him or her a lot. How did you deal with this and कैसा mindset था? मतलब मैं तो देख करके वही I was surprised कि like how can you have so much hate for someone that what you're doing is you're just sitting and you're literally typing that message to them कि बहुत सारे रेशियल कमेंट्स. आई डिडंट इवन नो कि इंडियंस को वहाँ पे ऐसे बोलते हैं. I'll show it to you अभी बाद में in this podcast, but that was very disheartening to see. Got it. So I mean, like, kudos to you. I mean, this is very, very courageous and brave of you not to delete the tweet. So I think that is something which everyone needs to learn. And any other tweet or any other thing which was covered by news article? I think एक मैंने देखा था जो Economic Times या HT ने cover किया था. Maybe everything was covered by news articles. I think my whole I think that they took my streaming rights of my US trip. क्या cover किया था? सब कुछ. मैं जब पहले मैंने वो गन शूटिंग के बारे में कुछ बनाया नहीं ट्वीट बिकॉज आई थॉट आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट, बट आई टॉक्ड अबाउट द सैन फ्रांसिस्को का एयरपोर्ट इतना ख़राब है. मतलब सैन फ्रांसिस्को इज़ द टेक हब ऑफ द वर्ल्ड एंड वहाँ का एयरपोर्ट फील्स लाइक आप ऐसे कोई Tier 2 Tier 3 सिटी आ गए हो इंडिया के. मतलब इट्स नॉट वेरी गुड. मैं बैंगलोर एयरपोर्ट से निकला एंड बैंगलोर एयरपोर्ट जो T2 वाला है इट्स मैजिकल. मतलब इट्स सेकेंड आफ्टर जूल चांगी ऑफ सिंगापुर. It's brilliant. I love it. And then I go to SF and I was like, ये क्या है? That became news. Then I made that tweet about Caesar's Palace and their hospitality and saying that maybe I'm spoiled by Taj hospitality in India. That became a news headline. What happened here? So basically मैंने रात के 2 बजे
चेक इन किया था सीजर्स पैलेस में, एंड मेरे को प्यास लगी थी, मतलब आई वाज जस्ट आस्किंग कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड द person was saying that you can buy like a $15 bottle for 200 ml, a 200 ml bottle for $15 you can buy and you can have it. And I don't want a bottle of water, I'm gonna go for sleep, I just need a glass of water. So she said you can buy it, which made no sense to me. I was like is this how you treat someone who's just entered your city for the first time ever? So that's why I tweeted. I said maybe I'm spoiled by Taj hospitality, right? Because I've never had that thing when I'm in India, and that is what blew my mind. I was like, ये पैसे भी ले रहे हैं, फिर उसके बाद मेहमान नवाजी भी नहीं है. So what is it? मतलब in hospital business, it's all about how you make your guest feel. So there are no written rules कि आपको यही करना होगा, ये नहीं कर सकते. It's all very bespoke, especially as you start paying more, the more custom everything gets. Because in my experience, I've stayed in a lot of hotels, so I know this for a fact. बट वो नहीं था, तो मैंने ट्वीट लिखा था. मैं सो गया और ट्वीट लिख करके फिर अगले दिन मैं उठा तो आई सॉ दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, फ्रॉम एन NDTV टू अ हिंदुस्तान टाइम्स टू अ टाइम्स ऑफ इंडिया टू एवरीवन दैट यू कैन थिंक ऑफ, मनी कंट्रोल. And then they called me and said that our manager would like to talk to you. We'll do a room upgrade for you and we apologize for whatever happened. They still did not give me a bottle of water. उन्होंने रूम अपग्रेड कर दिया. वी वेंट फ्रॉम अ नॉर्मल रूम टू एग्जीक्यूटिव स्वीट विद लाइक दो रूम एंड ऑल दैट, बट वी डिड नॉट गेट वाटर स्टिल. एंड दे वर लाइक कि विल गिव यू $300 के कूपन टू बी रिडीम्ड, आप कुछ भी खाना खाओ यहाँ पर, आप वो बेटिंग वो सब करो जो लास वेगस में होता है. सो बट दैट वॉज अनदर ट्वीट. देन वो जो आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को का गूगल ऑफिस एंड आई मेड अ ट्वीट अबाउट दैट कि मैंने ये गूगल ऑफिस में ये सब चीज़ें देखी. आई हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी टुक मी देयर टू द गूगल ऑफिस. दैट बिकेम अ न्यूज़ आर्टिकल कि बेंगलुरु टेकी विजिट्स गूगल सैन फ्रांसिस्को ऑफिस, दिस इज व्हाट ही सॉ इनसाइड. देन एवरीथिंग, राइट? मतलब आई वेंट फॉर, I booked a Uber in Los Angeles and a Mercedes pulls up and there's like a woman driver who's driving it. I clicked a picture of that and I posted it on Twitter and everyone is like कि हम बुक करते हैं जब इंडिया में तो हमारे लिए तो स्विफ्ट डिज़ायर आती है. तो that again became news, that this is what happens in Los Angeles when you book an Uber. That happened and then for example the tipping one went viral. उसके बाद फिर everything that I would do, राइट, आई वेंट टू हार्वर्ड का मर्चेंडाइज स्टोर एंड वहाँ पे आई फाउंड दिस जैकेट जो $150 का था एंड उसमें लिखा था मेड इन पाकिस्तान. तो मैंने बोला दिस इज इंटरेस्टिंग, तो आई मेड अ क्लिक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड पोस्टेड इट एंड दैट बिकेम न्यूज़ अगेन. एंड दैट बिकेम अ रील विच गॉट 10 million व्यूज इन पाकिस्तान. ऑल द पाकिस्तानी पीपल वर कमेंटिंग ऑन दैट कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है. मैंने कुछ बोला नहीं कि बुरी है अच्छी बात है, मैंने बोला कि दिस इज जस्ट रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग. मतलब पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ यहाँ पर इतने महंगे में बिक रही है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी दैट एंड देयर वर सो मेनी कंटेंट मेड ऑन दैट. सो स्टफ लाइक दैट बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो गई थी, मतलब स्पेशली ऑन माई फर्स्ट ट्रिप, बिकॉज आई थिंक दे नीड सेंसेशनल न्यूज़ कि अच्छा ये हो गया, या फिर ये इंडियन पहली बार US गया तो उसने ऐसे देखा. So I think that was the virality, unique, novel factor of it. Right. So let's say like someone goes to USA now and they want to reach out to people there. So can you share with your experience that पहले तो लोग कैसे ढूंढने हैं कि किसको मिलना चाहिए and उनको कैसे reach out करना है US में meetings के लिए? सबका अपना अपना गोल होता है. मेरा फोकस वॉज कि मैं सैन फ्रांसिस्को में जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट हुए हैं या फिर जस्ट इन जनरल जो AI में कुछ बना रहे हैं, मुझको उनसे मिलना है, उनसे समझना है कि वो कैसे सोचते हैं अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट बिल्डिंग अ कंपनी, अबाउट लेसन्स दैट देव लर्नड अबाउट वाई कॉम्बिनेटर, अबाउट SF, अबाउट US इन जनरल. सो एक तो देयर इज़ अ अमेजिंग वेबसाइट कॉल्ड lu.ma, लूमा, दैट यू कैन गो टू एंड वहाँ पे बहुत सारे फ्री में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे खुद की सिटी में, नॉट जस्ट इन SF, नॉट जस्ट इन न्यूयॉर्क, बट ऑल्सो इन बैंगलोर, इन दिल्ली, इन मुंबई. आप उसमें आके साइन अप करो, अप्लाई करो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल वहाँ पे डालो अगर वो मांग रहे हैं तो, एंड गो एंड अटेंड दोज इवेंट्स. When you sign up for that event, you also see the list of all the people who are coming for that event. And you can understand कि अच्छा इस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो मुझे इस तरह के बातें करनी होगी या इस तरह से you can get a perspective of how can you start a conversation with anyone. Can you give an example Of? from your incident? Yeah, so for example, there was an event which happened in Fort Mason in San Francisco, which was basically the high schoolers were pitching their startups over there
and we could basically try out their app and give them feedback and maybe even invest if we want to, or work with them, collaborate, anything. They were just pitching. It was like a pitching event. So I went there, I sat down, and वहाँ पे सारे जो बच्चे थे, कोई 12th में थे, कोई first year college में थे, they were just creating very cool applications which was just very interesting for me to see. एंड फिर उसके बाद उनसे मिला मैं बाद में, इवेंट के बाद उनसे बातें करी कि अच्छा आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. देन देयर वाज एन इवेंट कॉल्ड सेरेब्रल वैली विच वॉज आई थिंक द क्रेजिएस्ट इवेंट आई वेंट टू इन सैन फ्रांसिस्को. वहाँ पर एंथ्रोपिक का फाउंडर डारियो आए हुए थे. वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज के फाउंडर्स आए हुए थे, या फिर CXOs जो पोजिशंस में हैं वो आए हुए थे. एंड दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट their lessons that they've learned, and I got a lot of insights about AI and what it can do from that one event. Again, I found that event on Luma, or you can just search up San Francisco on Twitter and you'll find lots of messages and tweets that people are doing about events that are happening in the city. So you can go attend that, you can DM people. The best thing about San Francisco is that it's very inviting. It's very welcoming. You can be a 16-year-old who's curious about technology, go to San Francisco, DM 10 people and get 5-6 replies, which is incredible. ये न्यूयॉर्क में नहीं होता, इंडिया में कई जगह नहीं होता. देयर आर लॉट ऑफ लाइक क्लोज्ड डोर्स, जिसमें आपको अगर आप एक MBA हो तो ही आप जा सकते हो, अगर आप एक CA हो तो ही आप जा सकते हो, अगर आपने कोई डिग्री करी है तो यू कैन एंटर. बट दैट इज़ नॉट द केस विद सैन फ्रांसिस्को. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. बट that is one way to go and meet new people. Then another way that you can approach it as, let's say, for example, in my company, I run a marketing company. So we were interested in meeting a lot of startup founders and pitching them our services. So इसके लिए we made first of all a list कि हमारे customer का persona क्या होगा, who would want to work with us. So probably like a seed या फिर series A वाला startup होगा, which would be having like a B2C product, जिनके लिए हम YouTube services उनको sell कर सकते हैं. So that was our persona living in San Francisco. And then we went on platforms like Instantly and Apollo, and वहाँ पे हमने ये same सारी conditions डाल दी कि इतने employee होने चाहिए. let's say 25 employee हैं, that is a healthy number, 10 से 25 employee. And then we went through all the companies which we could potentially work with. उन सबको click किया, उनके emails निकाले और उन सबको email किया कि hey, I am Ishan Sharma, I run a YouTube channel with this many subscribers and views. I run a marketing company as well, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्टार्टअप साथ काम करके उनको सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ में ग्रोथ लाते हैं. And I noticed that you are situated in San Francisco. I am coming there and I would love to sit down and have a chat over coffee. There's no hard sell यहाँ पे कि आप हमारे client बन जाओ, but there's just a thing that let's explore, let's have a chat over coffee. And as I said, people are very welcoming in San Francisco. Everyone wanted to meet. So I was having lots of ऐसे meetings. And again, because I was staying in downtown, वहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी के पॉइंट्स हैं, तो यू कैन जस्ट गो एंड मीट एट एनी कैफ़े. एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. आई थिंक दैट इज़ हाउ वी रीच्ड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल. बट जस्ट इन जनरल आई थिंक अगर आप किसी भी इवेंट में जाकर के किसी से मिलोगे, ट्राई टू मीट देम अलग से. आई थिंक नेटवर्किंग को लोगों ने ना गलत तरीके से समझा है. नेटवर्किंग अगर आप इवेंट में जा रहे हो तो वो नेटवर्किंग नहीं है. You're just wasting your time and your potential. Real networking happens when you go to an event, meet someone, and then you meet them second time at a cafe, in which you're able to have a deep conversation about वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, और हम कैसे collaborate कर सकते हैं. And that is where you will get the true opportunities. So meet them, get their contact or their whatever works, Instagram या फिर Twitter. Most people give their Twitter in San Francisco, and just reach out to them. अलग से मिलो, उनसे बात करो, एंड दे विल ऑटोमेटिकली रेफर यू टू अदर पीपल. बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस में अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो अगल बगल में 4 स्टार्टअप और हैं, तो उनसे भी जाके मिल लो. एंड पीपल आर वेरी वेलकमिंग. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. So did you meet or did you approach any stranger in a cafe or in a co-working space, and how are those conversations? आई थिंक मैं एक बार आई किया गया था. द फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, आई पुट माई लगेज इन द होटल रूम. देन आई वेंट टू IKEA टू बाय अ लिंट रोलर, कपड़े साफ करने थे. एंड वहाँ पर आई मेट दिस फाउंडर ऑफ अ YC कंपनी, जिसके साथ मेरी बात हो रही थी मैसेज पर. एंड ही जस्ट रिकग्नाइज मी. उसने मेरे को देखा, मेरे को पहचान लिया. वो बोला कि आप तो ईशान हो, राइट? तो मैंने बोला हाँ. तो बोला कि मैं अभिरूप हूँ. एंड देन वी रियलाइज कि अच्छा यू आर फ्रॉम द DM that we were having, and let's meet, let's go to your house. तो फिर उनके घर गए एंड उनके co-founder से मिले, and that's how that happened. But ऐसा होता रहता है, मतलब कई बार
No, let's say ये तो this happens because you're a creator that people can recognize you. But I'm asking कि you let's say want to approach someone, or did you meet a stranger or approached that person and कैसे conversation हुआ था? Because I've heard that when let's say if you are going to any other country and all, if let's say you want to talk to someone or meet new people, make new friends, so like how do you do that? Especially in cafes or co-working spaces. ऐसे राह चलते लोगों को तो नहीं रोक के मैंने बात करी है ऐसे, बिकॉज एवरी वन इज़ इन अ हरी, एंड स्पेशली बिकॉज सैन फ्रांसिस्को में इतने ज़्यादा होमलेस लोग रहते हैं, तो लोग ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते किसी से. तो दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, वो नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन लगा के दे आर वॉकिंग रनिंग टू सम प्लेस और द अदर. बट अगेन वो इवेंट्स में जाकर के जो बात होती है दैट इज़ वेरी यूजफुल. सो यू कैन जस्ट रीच आउट टू समवन हू सिटिंग नेक्स्ट टू यू और स्टैंडिंग एंड बी लाइक, हे अमिशान, आई यू what do you think about this conversation that this person had? Just a conversation starter. Acha, what do you really do? Acha, you're also in production, I'm into marketing, how long have you been doing this? आपने कैसे start किया? What companies do you work for? इस तरह से you can just start a conversation, and they're also curious about what you do, especially when you are a young and upcoming person, so they're even more curious and they would love to give you more opportunities if you're just showing up and talking to people and making conversations. Don't feel shy, या फिर don't feel underconfident कि ये मुझसे बात क्यों करेंगे या फिर मैं कैसे इनसे बात कर पाऊंगा. That's just not the reality. मतलब सैन फ्रांसिस्को में स्पेशली आपको कोई भी मिल सकता है. मेरा दोस्त एक बार हाइकिंग पे गया था, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं अराउंड, इट्स लाइक अ वैली, सिलिकन वैली जो बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, मैनी पीपल गो फॉर लाइक हाइक्स. तो हाइकिंग कर रहा था, बगल में सैम ऑल्टमैन हाइक कर रहा है उसके साथ कैजुअली, like no security, nothing, the guy is just hiking along with you and you can just say hi, what's up, what are you doing right now? So you can just make conversations like that. ऐसे बहुत सारे instances होते हैं, बस आपको खुद को वहाँ पे available बनाना होगा in those situations, in those places. तो hikes हो गए या फिर ऐसे events हो गए, बहुत सारे closed door events भी होते हैं जहाँ पर it's like a big founder who's inviting let's say 2-3-4 लोग for dinner, private dinner. तो धीरे धीरे you will get invited for those. The more you network with people, those are special because वहाँ पर there's not a lot of crowd, yeah, there's not a lot of agenda, there's just like a heartfelt conversation from one founder to another, घर पे बैठ के खाना खाते हुए. So that is really good. But the Indian community over there is the best, मेरे को लगता है. मतलब मैं से 24 घंटे की फ़्लाइट लेकर के दुनिया के दूसरे कोने में आ गया, बट मुझे फिर भी ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में आ गया हूँ, क्योंकि इंडियंस इतने ज़्यादा हैं सैन फ्रांसिस्को में स्पेशली. तो हर बार आई नेवर वॉज अलोन, कि मैं अकेला था पूरे दिन से, मुझे कोई मिला नहीं, कोई अपनापन सा फील नहीं हुआ मुझे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. आई हैड सो मेनी पीपल. द गाय हु वर्क्स एट मेटा, उनके घर पे गया. देन देयर वाज वन मोर पर्सन हु यूज्ड टू वर्क एट एप्पल, देन ही इज बिल्डिंग हिज ओन कंपनी. गूगल में कई लोग काम करते हैं जो मेरे दोस्त हैं, तो उन सबसे जाके मिलता रहा एंड आई जस्ट हैड सच अ गुड टाइम. सो आई थिंक दैट्स माई सेकेंड होम. Wow. ये 24-hour flight you just mentioned that you took to go to the US, तो ये सिली सा सवाल है, बट 24 घंटे की जो फ्लाइट होती है उसमें हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम? डू यू बी प्रोडक्टिव, या तो मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स लाइक स्लीपिंग आल्सो वुड टेक सम पार्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू यूजुअली डू? आई थिंक डिपेंड करता है आप किस में ट्रैवल कर रहे हो. अभी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो कि बिजनेस में ट्रैवल कर रहे हो. मैंने दोनों में किया है ट्रैवल. तो बिजनेस में जब ट्रैवल करता था तो फिर ऐसा आधा टाइम तो आई थिंक खाना खाने में चला जाता है. वो ला रही है ये स्टार्टर कोर्स, मेन कोर्स, डेजर्ट कोर्स, फिर ये फिर वो कोर्स, और फिर बेसिकली द अदर पार्ट आई स्पेंड मे बी लाइक वॉचिंग सम वीडियोज़ या फिर रेस्टिंग. मेरे को पहले नींद नहीं आती थी इन अ लॉन्ग फ्लाइट, अभी मुझे आने लग गई है बिकॉज आई थिंक माई बॉडी इज ऑल्सो टायरिंग. बट पहले आई कुड नॉट स्लीप, तो आई वुड जस्ट स्टे अवेक एंड वॉच सम मूवी या फिर डॉक्यूमेंट्री या फिर जस्ट बिंज वॉच TV सीरीज एंड जस्ट डू दैट. अभी ऑन माई लास्ट फ्लाइट विच हैड अ ले ओवर इन एम्स्टरडैम फॉर 2 hours, एम्स्टरडैम से बैंगलोर की फ्लाइट वॉज 9 hours एंड आई स्लेप्ट फॉर लाइक 5-6 hours ऑफ दैट टाइम, विच इज़ ह्यूज. मतलब मैं इतना सोता ही नहीं हूँ कभी किसी फ्लाइट में, पता नहीं कैसे सो गया, इवन इन इकोनॉमी. बट आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस हैंड्स डाउन हैज़ बीन कतर का बिजनेस क्लास, विच वॉज incredible. Again, Apple booked it. It was like some 5 lakh rupees आना जाना, and I loved it. Basically it was a 22-hour की फ्लाइट थी, 4 घंटे तो दोहा में 2 घंटे का ले ओवर, उसके बाद about 16 hours more, तो 16 घंटे की जर्नी फ्रॉम दोहा टू सैन फ्रांसिस्को. What was so unique about this flight or experience? अरे वो बिजनेस क्लास नहीं है, वो फर्स्ट क्लास लगता है. मतलब आपको यू गेट लाइक अ रूम आपके लिए,
sort of ऐसा लगता है. Basically there's like a door which gets closed and then that's just your place. वहाँ पर there were like 2 seats. You can sit there as well, and there's like a massive TV. There's plenty of room to just relax, lay down. The seat reclines as a full bed. And बहुत सारी जगह है वहाँ पे, right? They give you pajamas to change into. They will give you, उनका खाना इतना बढ़िया है. Like they are the best airline in the world for a reason. And I loved how I could use internet whenever I want throughout the whole flight. So you can use internet also? Yeah, I could. Oh, I wow. could answer to my emails, send images, talk to anyone that I want. They have so many things that you can do. I just loved it. Matlab, I didn't even feel that. To me was like a experience in itself. So that was the best part. So you can also talk while you are in the flight? हाँ, मतलब you can take calls ना. My friend was doing like a Zoom call on the flight. Oh, wow. So Starlink के साथ collaboration करते हैं बहुत सारी flights, and they're able to do that. So Wow. stuff like that. This is something which is new to me also. Very crazy. इसमें एक बताना कि India versus US जो clients है, how do you find difference in terms of, let's say, mindset or even paying capacity? For example, if you are billing an Indian client, let's say 1 lakh rupees per month, यही सेम सर्विसेज के लिए यूएस में कितना पे करने के लिए रेडी हो गए? 3 से 4 लाख पर महीने का. ओके, सो 3x 4x. वहाँ पर बेसिकली सब कुछ इतना महंगा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि उनकी कॉस्ट क्या आएगी अगर वो यहाँ पे करेंगे सब कुछ. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यूट्यूब चैनल उनको खुद से स्टार्ट करना है किसी भी कंपनी को इन अमेरिका, तो दे वुड हैव टू हायर अ प्रोड्यूसर, समवन हु वुड लाइक थिंक अबाउट कि क्या बनाना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज. दैट इज वन पर्सन. सेकेंड इज अ वीडियो एडिटर. थर्ड इज अ ग्राफिक डिजाइनर. एंड देन दिस इज एटलीस्ट अ 3 people टीम. उसके ऊपर अगर कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखनी है तो कंटेंट राइटर अलग से चाहिए रहेगा. लेट्स से यू वांट टू हायर देम फुल टाइम बिकॉज यू वांट टू डू दिस फॉर द लॉन्ग टर्म. हर एक बंदा कम से कम 3 से 5-6 हज़ार डॉलर महीने का लेगा ही लेगा, राइट? तो इफ़ यू एड दैट कॉस्ट इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन यू कम इन एंड यू से कि भाई यू आर स्पेंडिंग लाइक 15-20 हज़ार डॉलर. I can come in and I can charge $5,000 a month and I can do it very well for you. And it's a no-brainer for them. Granted, they really believe that YouTube is important to their business. So then they will obviously splurge on that. So there was one client with which I had a 18-minute call and I onboarded them for $5,000 a month. And that was just because I was able to create that value proposition very clearly to them. Wow. And in terms of working experience, how is it different? Like, कैसे होता है इनके साथ काम करना? I think it's much better. Like when you work with a US client, they are not very hell-bent on the deadlines. They let you decide everything and then they test you. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, but it's like you tell us what to do, we will trust you. And let's experiment and see how things go. And they have that risk taking capacity a lot more. मतलब मैं किसी एंटरप्राइज क्लाइंट को यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करूँगा, मुझे 6 महीने लग जाएंगे. मैं यूएस में जाकर के किसी एक स्मॉल टू मीडियम बिजनेस को बेचूंगा 5-10 हज़ार डॉलर की चीज़, वो ले लेगा. बिकॉज दे कैन पे मोर एंड दे हैव मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड दे कैन एग्जीक्यूट फास्टर. वो है. बाकी वर्क कल्चर में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रिलैक्सिंग, ऑन नॉट वर्किंग ऑल द टाइम, राइट? जैसे वो L&T चेयरमैन बोलते हैं यू शुड वर्क इवन ऑन संडेज. ऐसा होता ही नहीं है. इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है गूगल में जो बता रही थी कि एक बार गूगल इंडिया से कोई सीनियर पर्सन केम एंड वो बोलते हैं मंडे 9 AM लेट्स हैव अ कॉल टू ऑल द पीपल हु आर इन न्यूयॉर्क. अगले दिन मंडे 9 AM ही वॉज द ओनली पर्सन इन द जूम कॉल. So he was like कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे and all that. तो they were like we don't join at 9 AM. We'll join the call at 12. We'll see you at 12. Bye bye. आए नहीं, ज्वाइन ही नहीं करी कॉल. तो देन ही रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ का क्या वर्क कल्चर है. दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स. तो ही एडजस्टेड एंड ही रियलाइज कि ऐसा इंडिया नहीं है ये जहाँ पे एकदम लाइक दे suck out all the gains and ROI from the employee working all the time. Yeah. ROI से अगर तू बात की है तो what was the ROI on your entire trip? So if you spend let's say 5 lakhs तो ROI तेरा कितना है? I think ऐसे exactly उसको measure करना is not right because you are building relationships with people, right? आप किसी से मिल रहे हो, that person can refer you to some other person who can become your client. That person can later start trusting you and become your client. तो आगे चल करके उसका ROI बढ़ता ही जाएगा. You just have to focus on meeting them enough times. जैसे मैं
जो एक क्लाइंट है उससे मैं SF में मिला, फिर मैं 2 महीने बाद वापस आया, वापस उनसे मिला. आई डेंट हैव टू मीट हिम बट आई जस्ट मेट हिम बिकॉज आई वांटेड टू सीक हिम और क्या कर सकते हैं, just meet as friends in general, just talk about life. उनके साथ 1 घंटे की कॉल हुई जिसमें हमने 30 मिनट बस बात करी अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड कैसे इंडिया का कोहिनूर ब्रिटिश के पास है एंड ऑल दैट. रैंडम टॉक, लाइक डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद द बिजनेस, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर. But I think ROI on my first trip was at least twice. मतलब if I spent like 5-6 lakhs, I made twice of that, and then it just kept increasing from there onwards. That's why you go to US every 2 months. नहीं मतलब वो है, बट आई जस्ट गो देयर, जैसा मैंने बोला कि लाइक द रिजल्ट्स विल कंपाउंड आगे चल करके. right. सो यू शुडंट थिंक ऑफ इट कि अच्छा मैंने अभी इस ट्रिप में इतना स्पेंड किया तो क्या मुझे अभी के भी ROI मिला कि नहीं मिला. That's not the right mindset to think about it. I watched one of the reels of Sarthak Ahuja, and he mentioned that US visa तुम लोग को अभी अप्लाई कर देना चाहिए even if you don't have any work in the US. Like he was saying that one of his friends missed out on an opportunity because he didn't have a US visa, similar to the Apple event thing which happened with you. And he mentioned on the reel that it just costs you let's say 15,000 or 20,000 to get a US visa, but it's there for 10 years with you. Yeah. And the ROI again, like it will compound only because whenever you get an opportunity, you shouldn't miss out on that. Exactly. So anyone who's watching this, I think even I recommend, मैं पापा भी हमेशा बोलते थे कि US वीज़ा के लिए तो अप्लाई कर लो, एंड देन भले ही वो कभी भी मिलेगा बट उसके बाद यू हैव लाइक अ 10 ईयर का पूरा वीज़ा, लाइक यू कैन गो टू US whenever you want to. आई थिंक नॉट जस्ट US, आपके पास वो वीज़ा है तो आप बाकी कंट्री में भी एंटर कर सकते हो. फॉर इट गेट्स ईजियर. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई कैन लिटरली बुक द नेक्स्ट फ्लाइट एंड गो टू दुबई without having to worry about my visa for Dubai. And I can just land there and they'll see my US visa and I just have to pay some 2,000-3,000 rupees and I'll get the Dubai का visa जो है. अच्छा, visa on arrival. हाँ, visa on arrival है for people who have the US visa. But if I did not have that, so I'll have to wait at least 5-6 days for me to get the visa on my Indian passport and then go there. So it just becomes easier. It's more convenient when you have the US visa with you. Right. And when you shoot podcast in USA, like this I am asking from a selfish perspective also कि मेरे को भी अगर वहाँ पे shoot करना है, so क्या cost क्या होता है? Like do you have some freelance videographer who is there or you shoot it on your own? What is the cost of shooting one podcast? मैंने पूछा था बहुत सारे लोगों से कि can I get a videographer? तो उनके रेट बहुत महंगे होते हैं, एज सेड राइट, $150 घंटे का. अब अगर मैं 2 घंटे शूट कर रहा हूँ तो वो बहुत महंगा हो जाएगा. दैट्स जस्ट द प्रोड्यूसर. फिर उसके बाद आप वो स्टूडियो रेंट करोगे या कहीं पे जा रहे हो आप, तो दैट वाज एक्सपेंसिव. तो एज आई सेड आई वाज कैरिंग एवरीथिंग ऑन माय ओन. तो मैं वही सेटअप खुद कर रहा था. जैसे यहाँ पे ये 2 कैमरा लगे हैं तो आई वुड सेट अप माई ओन ट्राईपॉड, सेट अप माई ओन कैमरा. आई वुड कम लाइक 45 मिनट्स बिफोर द गेस्ट एंड सेट एवरीथिंग अप एंड बी रेडी फॉर द पॉडकास्ट शूट. एंड इस तरह से करके मैंने सारे पॉडकास्ट शूट करे. तो देयर वाज नो producer that I had to hire, so that was free. I just had to pay the extra luggage cost which I was using to travel around. So तूने क्या 2 ट्राइपॉड्स लेके गया था, 2 कैमरास लेके गया था एंड 2 माइक, वायरलेस माइक्स. वायरलेस माइक नहीं, ऐसा ही माइक है बट इट हैड अ स्टैंड फॉर द टेबल. अच्छा, ओके, टेबल का स्टैंड. अच्छा, ओके. एंड ये सब तूने खुद से ही किया था वहाँ पे जाके? या आई जस्ट कैरीड इट विद मी एंड डिड इट माय सेल्फ. ओके, सो यू सेव लाइक अ लॉट ऑफ मनी हियर, लाइक ऑलमोस्ट पर पॉडकास्ट आई अज्यूम 60-70,000 रुपीस तो जाता ही होगा फिर. 50-60 हज़ार तो अज्यूमिंग रेंट एंड वीडियोग्राफर्स एंड ऑल. हाँ, वो दैट इज वेरी nominal to think about. Okay, got it. And ऐसा कोई specific month है कि अगर US जाना है तो ये month में गए तो better होगा? I think मेरी जो पहली ट्रिप थी उसमें मौसम दोनों जगह बेस्ट था. That was जुलाई अगस्त का टाइम. तो न्यूयॉर्क में भी अच्छा मौसम होता है, प्लेजेंट वेदर है. एंड इवन इफ़ यू गो टू सैन फ्रांसिस्को ठंड नहीं रहती वहाँ पे, तो पूरे टाइम ही मौसम सेम रहता है. So I think that was the best time to go. मैं अभी गया था दिसंबर में. That was the worst time to go because it's snowing. It's -9 degrees in New York. It is like -5 degrees in San Francisco in night. तो बहुत ठंड रहती है. तो you cannot go out and just walk for however long you want. Especially हम लोग Indians हैं तो we are not used to that climate. तो it took me a while to get adjusted to that. I had to wear those thermals and heat tech जो Uniqlo का होता है. तो I had to do that. Got it. And इसमें मतलब फिर जैसे Feb, March and all that would be decent month as well. That'll be very cold. अच्छा. अभी it's snowing right now in New York. It depends where you're going. San Francisco में it rains in November and even December. So don't go in that time because like you'd want to walk around, right? Like it's like a valley. वहाँ पे बढ़िया, there's like a nice sun.
कैलिफोर्निया सनसेट जो लोग बोलते हैं, कैलिफोर्निया वेदर, तो दैट इज़ बेस्ट एक्सपीरियंस्ड इन लाइक थोड़ा सा जब बारिश ना हो रही हो, बाकी टाइम इज़ द सेम वेदर प्रीटी मच. सो आई वुड से जुलाई के महीने में आओ, Got दैट it. इज़ गुड. And when you go to the US, how do you spend money? Like, do you take your credit card? Do you have some mobile wallet? वहाँ पर UPI वगैरह होता है, कैसे होता UPI है? नहीं होता है. मैं पहले गया था पहली बार तो आई वॉज कॉशियस, तो मैं $2500 कैश लेकर गया था, लाइक इन डॉलर्स. एंड दैट वाज अ मिस्टेक बिकॉज मैंने वो आज तक पूरे यूज़ नहीं करे, अभी 5 ट्रिप हो गई है. आई थॉट कि वो एक ही ट्रिप में हो जाएगा उसका स्पेंड, बट आई डिड नॉट यूज़ दैट. आई वॉज यूजिंग ICICI का फॉरेक्स कार्ड विच आई थिंक इज़ नॉट द राइट थिंग बिकॉज कुछ मार्कअप चार्ज करते हैं वो भी, बट आई वॉज जस्ट यूजिंग दैट टू पे ऑल ऑफ द बिल्स एंड that was convenient, that was working for me all the time. बाकी if you use like a normal credit card तो उसका तो dollar conversion rate is 90 rupees right now. Oh. Like I गलती से एक बार मैंने कहीं पे कर दिया था, $50 का था and 90 रुपए का conversion rate था, तो I paid extra on that. तो I learned from that I should always use the forex card and top it up. तो every time I would top it up by $500, तो वो कर करके आई वुड यूज इट एंड इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम माई सेविंग्स अकाउंट इन ICICI, सो इट वर्क्स वेल. But then you said कि it was a mistake कि ICICI का नहीं करना चाहिए था. क्रेडिट कार्ड से नहीं करना चाहिए, फॉरेक्स कार्ड से करना चाहिए. अच्छा, तो हाँ. फॉरेक्स कार्ड सेपरेटली इसके लिए बनता है. हाँ हाँ हाँ. सो आई गॉट माई फॉरेक्स कार्ड व्हेन आई वाज फर्स्ट गोइंग टू दुबई 1-2 साल पहले. सो दैट इज़ व्हेन आई गॉट इट एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन यूजिंग. तो उसमें मल्टी करेंसी स्टोर हो जाती है. सो आई हैव सम AED जो दिरहम होते हैं, आई हैड सम pounds in it, I have some dollars in it, Singaporean dollar भी है, so वो सब it's good to use it that And way. इसका कोई criteria होगा ना, like if you want a forex card then you should have like certain amount of ये balance तो मेरे or को नहीं income. पता, मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं बताया उन्होंने. Okay. I don't think ऐसा कुछ है exactly. मतलब I think every credit card or every card would have some criteria. I don't know. I mean, Forex card is a top up card, it's not a credit अच्छा, card it's ना. like a debit card. हाँ then. वो खाली है, मतलब उसमें आप समझ टॉप अप करो पैसे तो you can use it. Fair. वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया. Got it, fair. And US में वगैरह there is no system of UPI and all of that. वो कुछ भी नहीं हुआ. Zelle करके एक चीज़ है, बट अगेन उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है. तो उसके लिए हैव टू स्टे देयर, वो अलग वीज़ा चाहिए होता है, तो यू कैन नॉट गेट दैट एज अ ट्रैवलर. सो दे यूज Zelle, दे यूज और भी होते हैं कैश और स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या उनके रहते हैं, बट नॉर्मल रूल ऑफ थंब इज जस्ट यूज Apple Pay. So Apple Pay is used the most wherever I went. People were either using Amex, American Express cards, or they were having Apple Pay. Yeah. They would just pay for that and just go with that. बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंसिव यूज़ होता है अमेरिका में, मतलब इट्स नोन फॉर दैट ना. आई थिंक एवरी एवरेज अमेरिकन हैज़ 4 credit cards, and there's like a average debt that everyone has as well, which is a big number that everyone is on. So that's the interesting part about that economy. It's all built on debt. So what do you think India can learn from America? I think India should learn about how to sell things effectively. Like Indian companies can do a much better job of making your consumers sell. But I think वहाँ पे थोड़ा extra हो गया है. There's even a documentary called Buy More, right? That is a crazy documentary which talks about all the psychological tricks that brands in America use to keep selling you more and more stuff. So they make you feel that you need it. They tell you कि something is recyclable even when it is not. They hide the truth from you. They do not show you all the realities of वो कचरा कहाँ फेंक रहे हैं या फिर fast fashion industry का कचरा कहाँ जा रहा है. You don't even get to see that. And they just make you believe that what you're doing is the right thing to keep buying. So I think that is what Indian brands should learn. But in general, I think culture-wise, there is a massive respect for time, right? So as I said, right, even with the Uber thing, so Uber would stop for like 1-2-3 minutes, then it would just cancel itself and go. And यहाँ पे पैसे कट जाते हैं उसमें पहले ही. Oh. And like even especially there, वहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या होता है, आप पूरी राइड करते हो, then you pay from your GPay. वहाँ पर आप क्लिक करते हो कि अच्छा मुझे Uber Go चाहिए, तो पहले पैसे कट जाते हैं, फिर वो Uber सिलेक्ट होती है, फिर आती है आपके पास, और आपने वो कैंसिल हो गई तो उसमें से अपने आप कट जाते हैं. तो पैसे बहुत जल्दी उड़ते रहते हैं, मतलब यूएस में ऐसा मेरे को लगता है. मतलब यहाँ पे आई कैन वेरी माइंडफुली थिंक, जैसे यू ऑल्सो मेक लाइक अ नोट्स पे यू कैन राइट ना कि यहाँ पे ये गया. वहाँ पे यू विल नॉट बी एबल टू कीप अ ट्रैक कि क्या कहाँ गया. एंड में आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल करके बैठ करके पूरा बनाना होगा, अच्छा ये मैंने यहाँ उड़ाया, ये यहाँ उड़ाया. सो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू स्पेंड मनी एंड splurge in US.
And what is the craziest incidents or craziest thing that happened with you when you were visiting USA? Something that blew your mind. I think just the idea that I can sit next to like billionaires and just have a chat with them casually was crazy. मतलब I was not exactly a billionaire, but I was sitting in a cafe I called was Ramona. not exactly a billionaire. नहीं, I'm saying इस example में Yeah. I'm not exactly giving an example of a billionaire, Oh, but okay. for example, I You was are a in billionaire, man. I was in a cafe called Ramona Cafe. हाँ. स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के पास में है ये. तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे I was having coffee with a couple of my friends and बगल में Microsoft AI के CEO बैठे हुए हैं. He was just having a chill talk with someone. तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला hey I watch your tweets and all, I love your work, would love to connect and all. तो उसने बोला ये मेरा email है, मुझसे बात करो, करते हैं, let's explore something. तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं. And that is I think the best part about it. That blew my mind. The level of gun violence blew my mind as well. मतलब मैं एक बार जिम कर रहा था and I got to hear that there was some place जहाँ पे a 15-year-old girl in a school used a gun and fired like gunshots and 2 kids died because of that and a few more got injured, which is insane, right? मैं डर गया इस सुन करके. I was gymming. मैंने बोला भाई ये लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर, मतलब मैंने कभी ऐसा सुना नहीं इंडिया में ऐसा कुछ होता होगा. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, बट that was insane, like seeing a gun shot fired in front of me. मैंने नहीं देखा कभी इंडिया में ऐसे होते हुए, एंड मैं देख के डर गया वो सब क्या हो रहा है. एंड अगले दिन मैं देख रहा हूँ वो ब्लड स्टेन्स जो थे स्ट्रीट पे वो साफ कर रहे हैं कैजुअली, से कुछ हुआ ही नहीं. एंड आई ट्वीट अबाउट दिस एज वेल कि सर इसको में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा. आधे लोग आर ड्रग्ड, आधे लोग आर मेंटली डिस्टर्ब्ड and they are just on the streets. Most people are broke, they don't know what to do. The income inequality is on the rise. एंड इधर आपको बहुत ही अमीर लोग मिलेंगे जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं कैजुअली, या तो आपको बहुत ही गरीब लोग मिलेंगे जो कि ऐसे डंपस्टर से निकाल के, कचरे से निकाल के कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड दैट बिकेम न्यूज़ अगेन. सो स्टफ लाइक दैट इज इनसेन टू सी इन US. You also booked a cab and you got a driverless car, right? I saw it. Yeah, on your that was story. Waymo. So basically, Google in collaboration with Jaguar has come up with this idea called Waymo, which is driverless vehicles. It's available only in San Francisco. I think Los Angeles में भी है, if I'm not wrong. And basically, it's just like a Uber app. You can pay. It's sometimes cheaper than Uber as well, कभी-कभी. But in most cases, it's like slightly 10% higher, for example. So you book that, the Waymo will come on its own. वहाँ पे उसमें कोई ड्राइवर नहीं है, अपने आप उसके दरवाजे खुल जाएंगे, उसमें खुल के आप बैठो पीछे, फिर वो बोलेगा कि आप सीट बेल्ट पहनो. यू डू दैट एंड ऑटोमेटिकली इट सेज कि प्रेस द बटन एंड विल बी गुड टू गो. एंड फिर इट विल स्टार्ट टेकिंग यू टू वेरेवर यू हैव टू गो. एंड इट्स इनसेन हाउ गुड इट इज़. मतलब मुझे एक बार भी डर नहीं लगा कि मैं इस में बैठा हूँ, यहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं है. आई डेंट इवन फील दैट कि शुड आई बी वरीड या फिर शुड आई बी अफ्रेड या फिर क्या मैं लेट पहुँचूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ढलान पे भी सही चल रही है, या फिर व्हेन देयर इज अ इंक्लाइन वहाँ पे भी बढ़िया चल रही है. एंड दैट कार वाज जस्ट इनक्रेडिबल. बहुत सारे केसेस भी हैं जिसके अंदर वो कार में एक बार आग लग गई थी या कुछ हुआ था. लॉट्स ऑफ ड्राइवर्स आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द Waymo मूवमेंट, बट इट्स इनक्रेडिबल व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू टुडे. आई डोंट थिंक वो Waymo आने वाली है इंडिया में कभी. आएगी तो दैट विल बी अमेजिंग. बट अभी जापान में लॉन्च कर रहे हैं वो, दे आर लॉन्चिंग इन अदर प्लेसेस एज वेल, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. इंडिया में आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पहले ज़्यादा काम करना पड़ेगा, देन ओनली आई थिंक ऐसे टाइप के टाइम लगेगा services बहुत. हो गया. मतलब और इन जनरल लोग कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब वहाँ पर इंडिया में आई डोंट नो हाउ स्केलेबल वुड दैट मॉडल भी. यहाँ की रोड्स कैसी हैं, तो कौन से Exactly. एरिया में इट Infrastructure. कैन वर्क. मे बी इट कैन ओनली वर्क इन वो फोर्ट वाला एरिया, कोलाबा वाला एरिया इन मुंबई. वहाँ पे भी नहीं काम करेगा, बट ठीक है. लेट्स से इफ समवन इज गोइंग टू USA फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे कौन से 3 सिटीज़ है तेरे हिसाब से कि जो विजिट करने ही चाहिए एंड क्यों? आई थिंक सबसे पहले आपको विजिट करना चाहिए न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जिसने मुझे बहुत एक मोटिवेशन दिया है अबाउट जस्ट गोइंग ऑल इन. आप न्यूयॉर्क की सड़कों में जाके देखोगे, वहाँ पे लोग ऐसे भाग रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, एंड दैट फिल्स यू अप विद एंथुसियाज्म कि भाई लाइफ इज फुल ऑफ वर्क दैट यू कैन डू, ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बिल्ड योरसेल्फ, right? There are so many self-made billionaires in New York. That's the number one city you should go for. You should absolutely then visit San Francisco.
वहाँ पर द टेक सीन इज़ इनक्रेडिबल दैट आई हैव जस्ट बीन टॉकिंग अबाउट. वहाँ पे इवेंट्स में जाओ, वहाँ पे लोगों से मिलो. ऑल्सो गो फॉर द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस. बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे गार्डन्स हैं उनके, बहुत सारे पार्क्स हैं. सो गो देयर, स्पेंड टाइम देयर. आफ्टर दैट आई थिंक यू शुड ऑल्सो चेक आउट लास वेगस. वहाँ पर आई थिंक जस्ट स्पेंडिंग अ कपल ऑफ डेज, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो गो फॉर दैट मे बी. देन LA जा सकते हो इफ़ यू वांट टू गो फॉर लाइक घूमने के लिए. अभी LA इज़ बर्निंग राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर्स, बट दैट वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. LA के सनसेट, वहाँ के बीचेस, एवरीथिंग इज़ जस्ट अमेजिंग. इट्स ऑल वेरी ड्रीमी. वहाँ पर पूरी सिटी ऐसे, मैं एक बार सुबह हाइकिंग पे गया था, तो आई क्लाइम्ड ऑन अ माउंटेन टॉप एंड आई कुड सी द एंटायर सिटी एंड द सन राइजिंग, and that was incredible. Got it. And we spoke about cities, so that is done. But अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम US जा रहा है, तो ऐसी कौन सी लाइक बेस्ट प्लेसेस है कि यहाँ पे तो जाना ही चाहिए? प्लेसेस एज नॉट इन टर्म्स ऑफ सिटीज बट इन टर्म्स ऑफ लाइक आइकॉनिक थिंग्स टू विजिट. Iconic things to visit. I think the best thing you can try out is Central Park. Central Park मुझे बहुत अच्छा लगता है, especially कहाँ पे है? it's in Manhattan. So basically you go there. It's a rectangular like ऐसे park है where you can go and you can just spend your entire day. वहाँ पे बहुत से लोग आपको कुछ कुछ activities करते हुए दिखेंगे, and that is exciting. I think you should also visit Boston में जो Harvard का campus है, जो MIT का campus है Cambridge में. So go there, spend some time there. You should also check out Stanford का जो campus है. Again, you should have some people, some connects. So LinkedIn पे मैसेज कर सकते हो लोगों को कि अच्छा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कैन वी मीट, आई डू दिस, आई सी यू डू दैट, लेट्स एक्सप्लोर. वहाँ पे बहुत सारे कैफ़े होंगे, वहाँ पे जाकर के मिलो एंड यू विल रियलाइज़ कि बहुत बढ़िया चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे ऑन द कैंपस एज वेल. डू दैट. इन जनरल जो इंडियंस हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो. एंड उसके बाद आई थिंक सिलिकन वैली में Pier 39 जो सैन फ्रांसिस्को में है, वो यू शुड विजिट. वहाँ पे हाफ मून बे है, यू शुड विजिट. वहाँ पे गोल्डन गेट पार्क है, गोल्डन गेट ब्रिज है, जो ब्रुकलिन ब्रिज है न्यूयॉर्क का, दैट यू शुड एब्सोल्युटली विजिट. इट्स वेरी अमेजिंग स्पेशली इन द मॉर्निंग टाइम व्हेन यू गो देयर. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन डू एंड इट्स फन. Got it. एवरी प्लेस हैज अ डिफरेंट वाइब. मतलब सैन फ्रांसिस्को हैज़ अ वेरी वैली टाइप, गाँव टाइप वाइब आती है कई बार मेरे को तो ऐसा लगता है. इफ स्पेशली व्हेन यू आर नॉट इन डाउनटाउन, तो एवरीथिंग इज दूर दूर थोड़ा सा. देन न्यूयॉर्क जाते हो तो इट इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्क्रीट जंगल. सो दैट होल प्लेस हैज़ टन्स ऑफ स्काई स्क्रेपर्स एंड आपको लगता है कि आप कहाँ आ गए हो. लाइक इट्स जस्ट अ वेरी ड्रीमी प्लेस. New York is the place where world has the highest number of billionaires, right? I don't think it's the number with the place with the highest number of highest billionaires. billionaires New York में ही है. उसके बाद मुंबई में है. Mumbai is second हाँ. in the world. Yeah. Damn. So New York, then Mumbai. और आप उनमें से एक होने वाले हैं. जो ये ऑडियंस देख रही है ये अगले 10 साल में उनमें से एक होने वाली है फॉर श्योर. But last question, बहुत ही ज़्यादा of course insightful और interesting था. Last question, did you find any girl in US in your entire trip? अरे I found so many girls. Oh wow. Girls ही girls. As friends. तो कोई stories बताओ. क्या स्टोरी? तो क्या मिले, क्या हुआ फिर? अरे बहुत सारे लोग मिले. मतलब माई गोल वॉज जस्ट टू मीट इंडियंस इन न्यूयॉर्क एज वेल इन SF एंड जस्ट टॉक टू देम अबाउट लाइफ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको यहाँ पे क्या बेटर लग रहा है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस है. सो वी जस्ट मीटिंग लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड हियरिंग देयर स्टोरीज. सो देयर वाज लाइक अ गर्ल फ्रॉम पुणे जो कि वहाँ पे जाकर के नर्स बन गई है, शी इज़ वर्किंग देयर. देन देयर वाज लाइक अ गर्ल फ्रॉम मुंबई जो कि वहाँ पे जाके HP में काम कर रही है एज अ PM. देन देयर वाज समवन हु वाज वर्किंग एट गूगल, केम फ्रॉम मुंबई. And then there were people from like very little known towns जो कि US में काम कर रहे हैं. And that was very heartwarming to see that they've made it big in their life. Like if you're in New York, you've made it in your 20s. तो कोई कौन पसंद कौन है देखो इन सब में से कोई ऐसा? सबका जज्बा पसंद आया मुझे. सबका जो स्टोरी है वो सबसे अच्छा लगा मुझको. तो that was the best thing ever. तो इसे सीखना चाहिए बात कैसे करना है. How to be a good communicator. I think you should write a book on this. I should? Yeah, I think you should. But super interesting यार. Thank you so much for doing this. बहुत impromptu था, बहुत sudden था, but बहुत ही ज़्यादा insights मिले. And I am planning to go to US now after listening to you and this podcast. तो मैं तो पक्का trip मारूंगा. But any last message for all the viewers who are planning to go to US? I think अगर आप 20s में हो and अगर आप afford कर सकते हो तो आपको definitely कुछ time जाके spend करना चाहिए. It will open up your mind to other new possibilities. आई थिंक हम इंडिया में रह करके अपने खुद के बबल में रहते हैं कि अच्छा ये रियलिटी है और यही सच है. बट जब आप बाहर जाओगे, आप नए जगहों में जाओगे, लोगों से मिलोगे, वहाँ के कल्चर देखोगे, तो यू विल रियलाइज कि अच्छा ऐसे भी चीज़ें होती हैं.
तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू. It doesn't have to be you going for like a master's. बहुत सारे लोग जाते हैं मास्टर्स करने के लिए. I think that's okay. But in general, you can just go and spend some time there. You don't need to spend money in masters. Rather spend it in traveling and exploring and meeting people and going for events than spending money in masters. But again, to each their own. I don't have anything to say on that. मैं तो 12th पास हूँ. मैं क्या बोलूँगा? मास्टर्स पे एडवाइस दे रहा हूँ 12th पास होकर के. Thanks so much for doing this यार, काफी मजा आया. And when are you going to US next now? मार्च में जाऊँगा. अच्छा जा रहा है, फिक्स है. हाँ मतलब I'll have to book tickets and all, Oh, but wow. March is a good time. सही I'll है. go with my co-founder this time. And me? आपके साथ भी चलो, आप बताओ. I thought आप गर्ल्स साथ जाओगे. नहीं, चलो थैंक्स फॉर डूइंग दिस, मजा आया काफी. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.